Heartiest congratulations, my dear students, those who had entered in 11th class and opted science stream. So today we will start our chemistry unit 1, that is some basic concepts of chemistry. In this you had studied in 11 and we are starting in 11, that is from 9th. We will connect it from 9th. You had studied one topic, mole concept. There you had studied 5 words, that is N, M, capital M, N and N naught. These 5 terms you had studied in 9th class from the mole concept. N is number of moles and M is given mass and capital M is molar mass. Capital N is number of particles, atoms, ions, etc. And N naught is Avogadro number. Its value is 6.022 into 10 raised to power 23. That you have done in 9th class. From this we will connect our 11th class topic, mole concept. What is mole? It is a unit that we are using unit. 5 moles, 3 moles. What do you mean by this unit? To measure the quantity of any substance, to measure the quantity of any substance in chemistry. किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करना केमिस्ट्री में क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोल. उसके लिए एक यूनिट यूज की जाती है, मोल. इज इट क्लियर टू यू ऑल? Some units we are using here like length. Length को किस में मेजर करते हैं हम? जानते हैं आप लोग? Length को किस में मेजर करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर. Clear? And area. Area को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर. Clear? And temperature in Kelvin, degree Fahrenheit, degree Celsius and mass. किस में मेजर करते हैं मास को? किलोग्राम, ग्राम. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स. ये 4 यूनिट्स हैं. कोई भी चीज़, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करते हैं. जैसे लेंथ को किस में मेजर किया? मीटर, सेंटीमीटर. एरिया इन मीटर स्क्वायर. टेम्परेचर इन केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस. एंड मास इन किलोग्राम एंड ग्राम. नेक्स्ट यूनिट इज वॉल्यूम. इट इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब, लीटर, centimeter cube, and it is also written as cc, centimeter cube, cc, and decimeter cube. Clear is it better? Centi, deci and milli. Deci is represented by 10 raised to power minus 1 and centi is represented by 10 raised to power minus 2 and milli is represented by 10 raised to power minus 3. D, C and M, milli. And इसमें नेक्स्ट देखिए K. K is represented by kilo, that is 10 raised to power 3. किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? 10 raised to power 3. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन, most important, relation between meter cube and liter, ml and liter.
या मीटर क्यूब एंड लीटर. ओके, मीटर क्यूब एंड लीटर. See here, 1 liter is equal to how many milliliter? 1000 milliliter. 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है? 1000 मिलीलीटर. 1 ml is equal to 1 cc. 1 ml किसके इक्वल होता है? 1 cc. 1000 cc. cc means सेंटीमीटर क्यूब. cc is सेंटीमीटर क्यूब. इसमें क्या होता है? इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब में इसका मीनिंग होता है सेंटी क्यूब एंड मीटर क्यूब. क्या होता है इसका मतलब? सेंटी क्यूब एंड मीटर क्यूब. अब 1000 सेंटी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 raised to power minus 2. 10 raised to power minus 2 cube. Written here 10 raised to power minus 2 cube. Centimeter cube. Clear is it? 1 liter is equal to 1000 milliliter is equal to 1000 cc. cc को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10 raised to power minus 2 से. हाँ जी बेटा, इसमें देखिए 1 लीटर किसके इक्वल था? 1000 मिलीलीटर. 1000 सेंटीमीटर क्यूब. इसको हम और क्या लिखते हैं बेटा? सेंटी क्यूब एंड मीटर क्यूब. सेंटी के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? 10 raised to power minus 2. सेंटी क्या होता है? 10 raised to power minus 2. minus 2 क्यूब एंड मीटर क्यूब. 10 raised to power 3 और ये कितना आ जाएगा? 10 raised to power minus 6 मीटर क्यूब. Then it will becomes 10 raised to power minus 3 meter cube. 10 raised to power minus 3 is cube of 10 raised to power minus 1 meter cube. 10 raised to power minus 1 क्या है यहाँ पर? डेसी. 1 डेसीमीटर क्यूब. तो 1 लीटर किसके इक्वल आ गया? 1 डेसीमीटर क्यूब. ये सारे रिलेशन है इसके इक्वल होते जाते हैं. क्लियर इज इट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 लीटर कितने एम के इक्वल है? 1000. एम क्या होता है? सीसी. सीसी क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज सेंटी क्यूब एंड मीटर क्यूब. सेंटी के प्लेस पे क्या लिखा? 10 raised to power minus 2. उसका क्या कर दिया आपने? क्यूब. माइनस 2 का क्यूब इज माइनस 6 मीटर क्यूब. सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? ऐसे 10 raised to power minus 3 मीटर क्यूब. माइनस 3 को आपने खोल के लिख दिया 10 की पावर माइनस 1 होल क्यूब मीटर क्यूब. 10 raised to power minus 1 is डेसी. So it will comes out 1 डेसीमीटर क्यूब. नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. एरिया. एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. एरिया इनटू टी. क्लियर इज इट बेटा? प्रेशर की यूनिट्स कौन कौन सी होती है? एटमॉस्फेयर, पास्कल, बार, टोर, mmHg, cmHg. कौन कौन सी यूनिट्स हैं? एटमॉस्फेयर, पास्कल, बार, टोर, mmHg, cmHg. 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? 1.013 इंटू 10 raised to power 5 पास्कल. किसके इक्वल होता है? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 raised to power 5 पास्कल. 10 raised to power 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार. इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे हम? बार. देयरफॉर 1.013 बार. क्लियर इज इट? 1 एटमॉस्फेयर कितने इक्वल हो गया बार के? 1.013. दैट इज, इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार. क्लियर? एंड 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? और 760 टोर के इक्वल होता है. एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg. और cmHg में कितना हो जाएगा? 76 cmHg. समझ में आई बात बेटा? देखो 1 एटमॉस्फेयर किसके कितने पास्कल के इक्वल है? 1.013 इंटू 10 to the 5 पास्कल.
10⁵ पास्कल को हम क्या कहते हैं, 1 बार। 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया, 10⁵ पास्कल की जगह हम क्या लिख रहे हैं, बार, दैट इज 1.013 बार। 1 एटमॉस्फेयर 1 बार के इक्वल हो गया, 1.013 क्या होता है, 1 बार। 1 एटमॉस्फेयर कितने mmHg के इक्वल है, 76। कितने टोर के इक्वल है, 760 टोर। यही किसके इक्वल हो जाएगा, 76 cmHg के। अब इसमें आपने देखा मास इनटू वेलोसिटी, इसको देखो क्या लिखे हम, फोर्स की यूनिट क्या होती है, 1 न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल। अब 1 न्यूटन जो आपने लिखा, इसमें क्या आएगा आपके पास यहाँ पर सॉल्व करके, अभी यहाँ बताते, देखो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इज सेकेंड, एरिया मीटर स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से क्या आ गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 पास्कल के। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, ये किसके इक्वल आ जाता है, 1 kg अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आपने सॉल्व किया, मास किस में लिखा, किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर। सॉल्व होके क्या आ जाएगा यहाँ पर, किलोग्राम मीटर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसको किस किस में मेजर करते हैं हम, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर इज इट। फॉर्मूला ऑफ डिग्री सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन वाला, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इफ सम टेम्परेचर इज गिवन टू यू 25 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। मैडम आपको इसमें सिंपल यूनिट्स बता रहे हैं जो पूरी केमिस्ट्री में यूज होनी है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। ये आपने 9th में भी पढ़ रखा है पहले, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को, देखिए क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह 25, उसमें क्या ऐड कर देंगे 273, तो क्या आ गया 298। केल्विन में वही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 298 K इन केल्विन। क्लियर इज इट। नेक्स्ट इन डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। टेम्परेचर कितना है आपके पास, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करना है आपने डिग्री फ़ारेनहाइट पे। एट डिग्री सेल्सियस यू विल राइट डाउन 25। 9/5 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 32, उसमें क्या करना पड़ता है, प्लस 32, 5 5 25, 45 प्लस 32 इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सेम टेम्परेचर जो डिग्री में सेल्सियस में कितना था 25, फ़ारेनहाइट में कितना हो गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, वही केल्विन में कितना हो जाएगा 298 केल्विन। Same temperature in degree Celsius is 25 and in Fahrenheit is 77 and in Kelvin is 298. And in next lecture we will do mole concept. Mole concept. Today we have done only the units and the terms related to the chemistry. Mole concept in 3 terms we will do. Mole in terms of quantity, weight and volume. इन 3 टर्म्स में करेंगे हम मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वेट एंड वॉल्यूम। थैंक यू स्टूडेंट्स।